So we were discussing about the general features of the nervous system. We have seen the neurons are there, connective tissue, neuroglaya are there. The neuroglaya, different type of cells are there with different functions, and one of them is the oligodendrocyte. Okay, this cell is responsible for myelination of nerve fibers in the central nervous system. Remember, in the peripheral nervous system, it is the Schwann cell which causes the myelination. In the central nervous system, it is the oligodendrocyte which causes the myelination. But there are other differences also. The main difference is that in the peripheral nerve, multiple Schwann cells are involved in the myelination of a single axon. एक एक्सोन है मगर उसमें बहुत सारे स्वान सेल इन्वॉल्व होते हैं माइलिनेशन के लिए. मल्टीपल न्यूरॉन्स, मल्टीपल स्वान सेल्स आर रिक्वायर्ड. In case of the central nervous system, it is the reverse process. A single oligodendrocyte can cause myelination of multiple neurons. That is the difference. ये एक oligodendrocyte बहुत सारे नर्व फाइबर्स को माइलिनेट कर सकता है, जबकि स्वान सेल सिर्फ, बल्कि बहुत सारे स्वान सेल एक न्यूरॉन को माइलिनेट करने के काम आते हैं. That is the difference. Then the third type of the cell is the microglia. Microglia are just like tissue macrophages. They are migrating from the bone marrow actually. तो उनका lineage वही है जो macrophages का है, bone marrow से originate हो रही है. They are connective tissue cells. They are basically phagocytic cells. Okay, and their main function is the repair of the damaged tissue. Brain में अगर कहीं डैमेज होता है तो जो सेल डेड होते हैं उनकी डेब्रीज को हटाने का काम जो है वो आपके माइक्रोग्लाया करते हैं. Satellite cells are found in the ganglia, mainly in the dorsal root ganglia outside the spinal cord as well as in the cranial nerve ganglia. They regulate the environment of the neurons in the ganglion itself, just like the astrocytes. Now this is general outline. लगेगा कि ये बच्चों जैसी चीजें पढ़ा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है. Neurons anatomically can be divided into different categories depending upon the number of the processes which are issuing from the cell body of the neuron. So if only single process is emerging, it is known as unipolar neuron. एक ही process आ रही है. ध्यान दीजिएगा, if a cell is issuing only one process, that always will be an axon. वो डेंड्राइट कभी नहीं होगा. अगर एक ही प्रोसेस निकल रही है तो वो सिर्फ एक्सोन हो सकता है, डेंड्राइट कभी नहीं होगा. बिकॉज द डेंड्राइटिक फंक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इटसेल्फ, तो उसकी जरूरत नहीं होती. देन सेकेंड इज द बाइपोलर. टू प्रोसेसेस आर इमर्जिंग. वन इज द एक्सोन एंड अनदर इज द डेंड्राइट. ओके, द थर्ड वैरायटी इज pseudo unipolar, or we can call it a pseudo bipolar. Only one process is emerging from the cell body and it is dividing into two branches. Again, this has to be the axon only, that cannot be dendrite. And thirdly, the cells can be multipolar also. एक multipolar है, बहुत सारी processes निकल रही हैं. So if many processes are issuing from the cell body of a neuron, one has to be axon, rest of them are the dendrites always. So dendrites can be multiple, hundreds of them can be there on a single cell. The cell body contains, as like the other cells also, it contains the central nucleus is there, nucleus is there, mitochondria, Golgi apparatus, Nissl granules are found in the neuron only, बाकी कहीं नहीं मिलते ये. What the Nissl granules consist of? What they are? Yes, they are ribosomes. Neurofibrils are there, not found in other cells. They serve the purpose of the transport of the substances. Microtubules are there, substance transfer is there. Centrosome and centrioles are there. They are non-functional basically because these neurons do not divide. Divide नहीं करते, इसलिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती basically. And they have got a well-developed biosynthetic apparatus for the synthesis of the proteins and the synthesis of the chemical neurotransmitter, which is the important communicating substance between the neurons. Axon hillock is an important area of the neuron. Axon hillock is a slightly dilated portion of the initial segment of the axon
न्यूरॉन की सेल बॉडी से जहां से एक्सोन निकलता है वो एरिया थोड़ा सा वाइड होता है, चौड़ा होता है, उसको हम एक्सोन हिलक कहते हैं. दैट एक्सोन हिलक, नो टॉकिंग, that axon hillock is the only area in a neuron where propagated action potential can be generated. Action potential in a neuron usually does not develop over the dendritic processes. It do not develop over the cell body also. No. But it develops at the origin of the axon hillock, and then it propagates down the axon in the form of the propagated action potential. So that is the axon hillock. Why that is so? Why axon hillock is provided with this particular capability or characteristic feature is that for the development of the action potential, if you recollect, requires the presence of the fast sodium channel. एक्शन पोटेंशियल के लिए फास्ट सोडियम चैनल होना जरूरी है. while this area axon hillock has got the maximum density of the fast sodium channels, so it can only develop the action potential. Rest of the soma or the dendrite does not contain, they do contain fast sodium channels, but the density is very low, so propagated action potential cannot be generated on those parts of the neuron at all. So axon transmits the action potential, of course. It transmits the neurotransmitters from the soma cell body to the periphery of the nerve fiber. It generates or transfers trophic factors, growth factors synthesized in the cell body to the termination of the neuron or nerve fiber. They also secrete neuromodulators. We will learn about them later on, but I can tell you that neuromodulators are the chemical substances released from the nerve endings of the neuron, but they are not neurotransmitters. They do not combine with the receptor. Postsynaptic membrane does not contain receptor for them, but they modulate the activity of the neurotransmitter which is released by that particular neuron. So they modulate the activity, so they are known as neuromodulators. And all these substances are transferred from cell body to the terminal by the phenomena that is known as the axonic flow. And that axonic flow can be bidirectional, means any substance from the terminal of the axon can be transmitted toward the cell body, while any substance from the cell body can also be transmitted to the peripheral or end of the nerve fiber. That is bidirectional flow is there. Soma is the cell body. Soma is the cell body, and its main purpose is the integration of the input. A neuron, as I have said, can have thousands of the processes, dendrites can be there, and all those, a single neuron can receive 10,000 inputs from different sources. एक न्यूरॉन के ऊपर 10,000 इनपुट आ सकते हैं. All those inputs have to be integrated at the cell body. कुछ वहां से आ रहा है, कुछ यहाँ से आ रहा है, कुछ यहाँ से आ रहा है. इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, उसका इन्फ्लुएंस कम होगा, वो देखेंगे ऐसा क्यों होता है. All these inputs are converging on the cell body. Other inputs are also coming directly over the cell body. All those are added together. जो नेगेटिव में आ रहे हैं वो घट जाएंगे, जो पॉजिटिव में आ रहे हैं वो जुड़ जाएंगे. So summation will be there, and ultimately if the electric change is sufficient enough to cause potential depolarization at the axon hillock, it will generate an action potential. If that is not so, action potential will not be generated. So purpose of the soma or function of the soma is to integrate all types of input coming on that particular neuron, ultimately deciding whether to fire an action potential or not to fire an action potential. Dendrites again are serving the same function. They are the site of reception of the information from different inputs. बहुत सारे न्यूरॉन से इनपुट आ रहा है और डेंड्राइट पे आ रहा है ज्यादातर, और डेंड्राइट पे इनपुट आने के बाद में दैट हैज टू ट्रेवल टू द सेल बॉडी, दैट हैज टू ट्रेवल टू द सेल बॉडी. इट मींस व्हाइल ट्रेवलिंग the intensity or magnitude of that electrical response will go on decreasing, because on the dendrites the electrical phenomena traveling is not action potential, it is not all and none law, it is a local response type the phenomena. डेंड्राइट पे जो दूसरे सेल से इंफॉर्मेशन आ रही है वो लोकल रेस्पॉन्स के रूप में आ रही है, वहां से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे जो जनरेट होगा वो लोकल रेस्पॉन्स जनरेट होगी. And that local response over the dendrite will not travel in the form of the action potential. It is a local response.
तो इफ द लोकल रेस्पॉन्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान है, देन यू शुड रिमेंबर दैट इट इज डेक्रीमेंटल कंडक्शन। जो जो आगे बढ़ेगा उसकी इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। तो जो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट पे बहुत दूरी से आ रही है उस सेल तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम रह जाएगी। जो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी पे डायरेक्टली आ रही है उसका मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होगा, जो पास वाले डेंड्राइट से आ रही है उससे उसका थोड़ा कम होगा। सो दैट इज द वे ए न्यूरॉन इनपुट कैन इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ द फाइनल न्यूरॉन पाथवे। ओके, सो डेंड्राइट्स आर, it means dendrites are not only receiving the information but they are changing the information also, they are processing the information also। क्यों डेंड्राइट्स पे पॉजिटिव डिपोलराइजेशन भी आ रहा है, डेंड्राइट पे हाइपर पोलराइजेशन भी आ रहा है, और वही नेगेटिव पॉजिटिव जुड़कर जितने भी समेशन हो रहा है वो डेंड्राइट पे भी हो सकता है और तब सेल बॉडी पे जाएगा वो। So dendrites not only are transmitting the information toward the cell body but they are integrating the information also before it reaches to the soma of the neuron। So they are modifying the nerve impulse at their own level by the process of summation। इसकी बाद में बात करेंगे। summation दो तरह का होता है, spatial and temporal summation is there। This is the structure of the neuron। ये simple सा न्यूरॉन है और इसका देखिए बहुत ज्यादा डेंड्राइटिक ट्री है। Thousands of impulses can arrive on this particular neuron। Multipolar neuron is there। ये तो आप सबका देखा हुआ है। Trophic factors maintain synaptic connection, promote growth of the axon। बहुत तरह के होते हैं CNS में, खासतौर से nerve growth factors are there, brain derived growth factor is there। इसके ऊपर आजकल काफी स्टडी चल रही है। न्यूरोट्रोपिन्स आर देयर, नाम से पता लगा न्यूरो नर्व फाइबर का ट्रोफिक फैक्टर है ये न्यूरोट्रोपिन 3, 4, 5। सीलियरी न्यूरोट्रोपिक फैक्टर अफेक्ट ग्रोथ ऑफ द डॉर्सल रूट गैंग्लिया एंड मोटर न्यूरॉन। तो ये ट्रोफिक फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नर्वस सिस्टम। सो अल्टीमेटली वी कम बैक टू द सेम थिंग, एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन सेंसरी इनपुट। सबसे बड़ी बात है इनपुट जाना चाहिए, ठीक है, वो जरूरी है। देन दैट इनपुट और मल्टीपल इनपुट्स इफ दे आर, they have to be integrated, they have to be summated, they have to be analyzed before deciding the course of action। okay, and thirdly is the motor output। action क्या होगा वो decide होता है। so that is the basic point of working of the CNS। sensory input arises from different type of the specialized cells of the nervous system which we call as the receptors, and depending upon their location in the body they can be, हम इनका डिटेल में बात करेंगे। These receptors can be superficial receptors, deep receptors, visceral receptors, central receptors and chemical receptors। अलग अलग तरह के हैं, आगे बात करेंगे इनके बारे में। Motor output is in the form of or from or in the form of lower motor neuron and the upper motor neuron। Definition we have already seen। Would anybody like to define what is a lower motor neuron? What is a lower motor neuron? मोटर न्यूरॉन क्या होता है? एक्शन क्या करवाता है? मोटर एक्टिविटी का मतलब मूवमेंट जो क्रिएट करता है ना, वो मोटर चीज होती है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है? नहीं, इधर है मेरा मुंह अभी। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? और मतलब लोअर पार्ट का क्या मतलब समझे? सर के नीचे नीचे, गर्दन के नीचे, हाथों के नीचे, क्या समझे? अरे नहीं बच्चे, ऐसे थोड़ी, ये तुम समझते कहाँ? यही तो हम पूछते, तुम पढ़ते कहाँ से हो? गूगल से पढ़ते हो क्या? ये डॉक्टरी गूगल से नहीं पढ़ी जाती है, मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारी चीजें वो होती हैं, वो अनवेरिफाइड होती हैं उसके ऊपर। नोबडी नोज व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग गिवन देयर। तो उससे पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। So what is a lower motor neuron? Yes, that is the correct answer। Any neuron situated in the spinal cord or the brain stem। ध्यान दीजिएगा, ब्रेन स्टेम के ऊपर वाला नहीं आता है इसके अंदर। ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन सिचुएटेड है और जो डायरेक्टली स्केलेटल मसल को इनर्वेट कर रहा है, वो स्केलेटल मसल फेस की भी हो सकती है, नेक की भी हो सकती है और किसी भी बॉडी पार्ट की हो सकती है। इन मसल्स को जो न्यूरॉन इनर्वेट कर रहा है डायरेक्टली,
वो लोअर मोटर न्यूरॉन कहलाता है। ब्रेन स्टेम क्यों बोला मैंने? क्योंकि बहुत से मोटर क्रेनियल नर्व्स हैं जो फेशियल नर्व के सप्लाई के लिए आते हैं, तो वो भी आपके लोअर मोटर न्यूरॉन ही होंगे। और अपर मोटर न्यूरॉन कौन है? जो इनको कंट्रोल करता है। एनी न्यूरॉन सिचुएटेड इन दी कॉर्टेक्स, cerebellum, basal ganglia, reticular formation, brain stem, and affects or modify the activity of lower motor neurons is an upper motor neuron। तो ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली जब अस्पताल में जाओगे, पैरालिसिस का केस देखोगे, तो अल्टीमेटली पूछेगा ये कि ये कौन से न्यूरॉन की प्रॉब्लम आ गई है, लोअर मोटर न्यूरॉन की है या अपर मोटर न्यूरॉन की है। हेमीप्लीजिया आपने देखा होगा, कईयों के आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, दैट इज एन अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ द डिजीज। जब पोलियो होता था तो पोलियो में मसल वेस्टिंग हो जाती है, मसल्स काम ही नहीं करती, दैट इज अ लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालाइसिस। दोनों में फर्क है, एक में मसल वेस्टिंग हो जाती है, दूसरे में नहीं होती। देयर इज लॉस ऑफ डिफरेंसेस, मगर दोनों में वॉलंटरी एक्टिविटी नहीं होती। अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज है, वॉलंटरी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, लोअर डैमेज है तो अभी खत्म हो जाएगी। So there are lot of differences and similarities are there. So motor output then can be in the form of the somatic motor output or it can be autonomic motor output. Somatic में देखा हमने लोअर मोटर न्यूरॉन होता है, अपर मोटर न्यूरॉन होता है। ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक फ्लोज आर देयर एंड वी ऑलरेडी नो, इनके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। In the somatic system the response or output pattern is either contraction or relaxation of the skeletal muscle। रिलैक्सेशन भी एक एक्टिविटी होती है। डू यू एग्री टू दैट? बिकॉज वेन एवर द बॉडी क्रिएट्स ए मोटर एक्टिविटी, certain muscles are contracting, but the antagonistic muscles simultaneously must relax to allow that movement to take place. We have seen the example that if I flex or if I create a flexion at the elbow joint, biceps need to contract, and the biceps is contracting, triceps must relax simultaneously to allow that to happen. अगर ये रिलैक्स नहीं होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, एक्टिविटी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, दे आर एक्टिवली ब्रॉट अबाउट। ये पैसिव फिनोमिना नहीं है, ये एक्टिव फिनोमिना है। ऑटोनॉमिक में वी नो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स and cardiac muscles as well as secretion of the glands of the body. Okay, both endocrine glands and exocrine glands are affected by the activity of the autonomic nervous system. Then the central processing, एक इनपुट था रिसेप्टर्स का, दूसरा आउटपुट हो गया सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, और जो बीच का रह गया वो है प्रोसेसिंग। दैट प्रोसेसिंग वी हैव सीन अकर्स एट दी सिनेप्सिस मेनली। सिनेप्सिस के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग हमने देखा डेंड्राइट्स में भी शुरू हो जाती है इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन की। तो सिनेप्सिस आर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, न्यूरोनल सेल बॉडी इज प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, एक न्यूरॉन से न्यूरॉन जहां कम्युनिकेट करता है वहां भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग most of the information is stored in the form of the memory for future use of that particular information. Then there are different levels of control in the central nervous system. ऐसा नहीं कि सारा सिस्टम एक साथ काम करे ही करे, ऐसा जरूरी नहीं है। The lowest level of the control is the spinal cord. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत से बच्चे ध्यान भी नहीं देते, जैसे नया बच्चा इन्फेंट पैदा होता है तो उसको ओरिएंटेशन नहीं होता, उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता बेसिकली, इट इज नॉट येट फंक्शनल, इट इज देयर बट इट इज नॉट फंक्शनल। मगर उस बच्चे को अगर आप पास में जाएं और उसके हाथ में जो उसका इतना सा बंद होता है उसमें उंगली डाली हो तो बंद हो जाएगा उसका। दैट इज अ रिफ्लेक्स दैट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। इसको कहते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स। वॉलंटरीली नहीं कर रहा वो, बट ये रिफ्लेक्सली आता है। ठीक है, इसी तरह उसका गर्दन अगर यहाँ घुमाए तो ये हाथ उसका यूं थोड़ा खुल जाएगा, ये हाथ बंद हो जाएगा। ये नेचुरल रिफ्लेक्स है जो प्रेजेंट होती है। सो दीज आर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। सो एट बर्थ some reflexes are present, gradually these reflexes disappear, they are overwhelmed by the development of the cerebral cortex. So there is a level of the control, certain activities are there। ये जो walking movement है, this can happen in the absence of the cortex in certain animals।
इसका मतलब जो वॉकिंग सर्किट्स हैं ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दे आर प्रेजेंट। तो सर्टेन मोटर एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ओनली, उसके लिए ऊपर की जरूरत नहीं होती है आपको। देन कम द वाइटल फंक्शन, रेस्पिरेशन कंट्रोल है, कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, all these control mechanisms are residing in the brain stem. So second level of control is the brain stem of the body or the CNS, and this brain stem also is responsible for other reflexes which are not found in the spinal cord, they are present in the brain stem. तो जो मैंने ये बताया था ना, गर्दन को इधर घुमाया, गर्दन को इधर घुमाया, ये जो रिफ्लेक्स आ रही हैं ये ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होती है, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं होती, ठीक है ना। ये नेक रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं, दे आर एटीट्यूडनल रिफ्लेक्सेस बेसिकली। And then it is the cerebrum, highest level of the control that is in the human being, जिसमें आपका थिंकिंग पैटर्न भी आ जाता है, लर्निंग भी आ जाती है, ये सारा आपका cerebrum से हाईएस्ट कंट्रोल होता है। So there are 3 different levels of the control mechanisms are operating in the body. So in the spinal cord what activities are present, ये हम ह्यूमन बींग्स में नहीं देखते, ध्यान दीजिएगा, they are all studied in the animals। तो एनिमल्स की अगर स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से अलग कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं स्पाइनल एनिमल है ये, ठीक है। उसमें देखा हमने क्या क्या चीजें मौजूद है, ब्रेन के नहीं होने के बावजूद भी ये सारे रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर, ये एक्टिविटीज प्रेजेंट है। वॉकिंग सर्किट्स आर देयर एज आई सेड, वो डायगोनल स्टेपिंग मूवमेंट दिखा सकता है डॉग जो है। विड्रॉल सर्किट्स आर देयर, विड्रॉल का मतलब जैसे मैं यहाँ पिन चुबाऊं तो ये हाथ विड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे, दो सर्किट्स आर देयर। सपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, उस एनिमल को अगर यहाँ टिका दिया जाए तो चारों लिम्ब जो है रिजिड हो जाएंगे बिल्कुल, टू सपोर्ट द बॉडी वेट। ये हम डिटेल में आएंगे इन सबके एक एक करके। एंड सर्किट्स फॉर द रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ द ऑर्गन फंक्शन, तो ऑल दीज आर फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो। तो अगर एनिमल में स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कुछ भी नहीं है तो भी ये सारी चीजें मौजूद होंगी, मिलेंगी आपको। ब्रेन स्टेम कंटेन्स और इज इंक्लूडिंग मेडुला, pons, mesencephalon, hypothalamus, thalamus, cerebellum and basal ganglia are included in the brain stem and control the subconscious body activities। सबकॉन्शियस जो बॉडी के मूवमेंट्स है, मसल टोन है, पॉस्चर है, इक्विलिब्रियम है, वो सारा यहाँ से कंट्रोल हो रहा है आपका। आर्टिरियल प्रेशर, रेस्पिरेशन, दे आर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियाई। ब्रेन में न्यूक्लियाई का क्या मतलब होता है, वो सेल के न्यूक्लियस की बात नहीं करते हम, यहाँ सीएनएस में जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की तो सेल का न्यूक्लियस नहीं होगा वो। न्यूक्लियस इन द ब्रेन मींस अ ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फंक्शन। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर अगर एक ही तरह का फंक्शन कर रहे हैं तो हम उनको कहते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो वेरियस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड दे आर परफॉर्मिंग द वाइटल फंक्शन रेगुलेशन द ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, इक्विलिब्रियम, feeding reflexes and emotional patterns in the animals। cortex अलग से कुछ नहीं करता ये। if the cortex desire to do some function, those functions have to be routed through the brain stem and the spinal cord, उनके थ्रू ही काम करेगा, अलग से इसका कोई सर्किट नहीं होता। in the lower centers large memory storehouse is there in the cortex, essential for the thought process, that is the prefrontal cortex में होता है ये सारा का सारा। And each portion of the nervous system performs specific functions, but it is the cortex that opens the world for the own mind। मतलब जो दुनिया जो हमें दिखाता है वो दिमाग आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, लोअर सेंटर्स में नहीं होता। So your orientation of being, of selfness is created by the cerebral cortex। ये जो अपने आप को जानने की जो क्रिया है, समझना है कि मैं हूं, वो जो चीज है वो कॉर्टेक्स से आती है, बाकी सेंटर से नहीं आती। सो नाउ वी कम टू द इनपुट पैटर्न। सबसे पहले इनपुट की बात करेंगे। इनपुट मींस रिसेप्टर्स आर रिक्वायर्ड। सो रिसेप्टर्स आर, व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स capable of converting different types of the stimulus energy into electrical signals। वो सारे सेल जो अलग अलग तरह की एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे रिसेप्टर्स होते हैं और उनको हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। फिजिक्स में ट्रांसड्यूसर वही होता है जो कन्वर्ट करता है एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में। तो इन दी बॉडी ऑल्सो द एनर्जी कैन इम्प्रिंग अपॉन इट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत सारी तरह की एनर्जीज होती हैं
जो बॉडी के अंदर इम्प्रिंट करती है, इफेक्ट करती हैं. एंड वी हैव गॉट रिसेप्टर्स to appreciate those energies and to convert those different energies into the electrical signals, okay, so that it can be transmitted onward into the central nervous system. So depending upon the type of the energy to which they respond, the receptors can be named or classified as mechanoreceptors, chemoreceptors, electromagnetic receptors, nociceptors and thermal receptors. Mechanoreceptors are those receptors which respond to mechanical deformation of the body parts. मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होना चाहिए, वो टच से भी हो सकता है, वो प्रेशर से भी हो सकता है, वो वाइब्रेशन से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है. जो बालों को हिलाती है हवा, जब सहलाती है तो हमें पता लग जाता है, दैट इज अ मैकेनिकल डिफॉर्मेशन. तो ऑल दोज रिसेप्टर्स, ब्लड प्रेशर में बदलाव आ रहा है, वो भी मैकेनो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली. तो ऑल दोज रिसेप्टर्स responding to mechanical change in and around the body are the mechanoreceptors, and these are the different receptors responsible for responding to different types of the energies or different forms in which the energy is produced to the body. Okay, इसका मतलब समझाता हूं मैं. One is the Pacinian corpuscles, आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में. This is the receptor which respond to vibration. अब वाइब्रेशन है क्या? रैपिड रिपीटेड टच स्टिमुलस ही तो है, और क्या है ये? मगर टच रिसेप्टर जो दूसरे तरीके के, वो इसको रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं. वी नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग द वाइब्रेशन सेंस. एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और एक मान लो ये 500 वाइब्रेशन आ रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से, देन अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर नीड टू बी देयर. तो एक स्टिमुलस आया, दूसरा आया, इसके बीच में इस रिसेप्टर को तैयार हो जाना चाहिए दूसरे के लिए. पहले रिसेप्टर का रेस्पॉन्स खत्म हो जाएगा और दूसरे के लिए तैयार है. सो इट नीड्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑल्सो. सो रैपिड रिपीटेटिव स्टिमुलस अगर हाई फ्रीक्वेंसी का है, देन दैट विल बी डिटेक्टेड बाय द पैसिनियन कॉर्पस. देन वी गॉट मीशनर्स कॉर्पसल. ये भी वही है, मगर ये कम फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है, थोड़ा, उतनी ज्यादा को नहीं करता. मर्कल्स डिस्क, ये स्किन में होती हैं, दैट इज ऑल्सो, इनके अलग करेक्टरिस्टिक फीचर्स हम बाद में बात करेंगे. रुफनी एंड ऑर्गन्स एंड बल्ब ऑफ क्राउजे, एंडिंग्स अराउंड द हेयर फॉलिकल्स एंड फ्री नर्व एंडिंग्स, all these types of the receptors can respond to mechanical deformation in and around the skin. Okay. Then other mechanical receptors found elsewhere are the muscle spindles. Skeletal muscles के अंदर ये मौजूद होते हैं, और इनकी ही वजह से, इन रिसेप्टर्स की ही वजह से हम सीधा खड़ा रह पाते हैं. अगर ये रिसेप्टर नहीं होंगे तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगी. मसल स्पिंडल्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, कॉक्लियर रिसेप्टर्स इन द ईयर, हियरिंग के लिए, वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स फॉर द इक्विलिब्रियम अगेन इन द इंटरनल ईयर, एंड द बेरो रिसेप्टर फॉर द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. ये सब मैकेनो रिसेप्टर ही हैं. देन थर्मोरिसेप्टर्स दो तरह के हैं. कोल्ड रिसेप्टर्स आर देयर, वार्म रिसेप्टर्स आर देयर. दे आर नॉट स्पेसिफिक, ये सिर्फ नर्व एंडिंग्स होती हैं, मगर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग है. तो दे आर रेस्पॉन्डिंग आइदर टू द कोल्ड और टू द वार्म एनवायरमेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजन में होते हैं, आई के अंदर जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स. इनको टिली रिसेप्टर्स भी कहते हैं, आगे आएंगे. रॉड्स एंड कोन्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स. एंड कीमो रिसेप्टर्स कई तरह के हैं. कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन के कीमो रिसेप्टर्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. उसके अलावा भी है टेस्ट सेंसेशन, ऑल्फैक्शन, एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी आ गई इसके अंदर, एंड हाइपोथैलेमस. दे ऑल कंटेन कीमो रिसेप्टर्स इन द बॉडी. एंड नोसिसेप्टर्स, नोसी का मतलब पेन, पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो नोसिसेप्टर्स कहलाते हैं. एंड दे आर फ्री नर्व एंडिंग्स. Then depending upon the location of the receptor in the body, they can be classified differently. वो अभी जो देखा वो एक तरह था,
क्लासिफिकेशन का तरीका, ये दूसरा तरीका है उसका। सुपरफिशियल रिसेप्टर्स located in the skin, mucous membrane and subcutaneous tissue. Deep receptors are located in the muscles, ligaments, joint capsules, and these receptors are also known as proprioceptors. Proprioception का मतलब पोजीशन सेंस, बॉडी की पोजीशन क्या है 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट के अंदर या एक दूसरे के रिलेशनशिप में। ये जो हमें पता लगता है कि मेरा हाथ आधा बंद है, ये आधा अंगूठा बाहर की तरफ है, ये जो सेंस ऑफ पोजीशन है बॉडी की, दे आर डिटरमिन्ड बाय द रिसेप्टर्स व्हिच आर नोन एज प्रोप्रियोसेप्टर्स। पोजीशन सेंस को डिटरमिन करते हैं ये। सो दे आर लोकेटेड डीपली, दे आर डीप रिसेप्टर्स। देन वी हैव गॉट द विसरल रिसेप्टर्स व्हिच आर लोकेटेड इन द विसरा ऑफ द बॉडी, एंड विसरा कंटेन्स नोसिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर्स। माइंडेड nociceptors are there, but if you cut the intestine, no pain will be there. तो इंटेस्टाइन के अंदर या नीचे जो ऑर्गन है बॉडी के अंदर, उनमें पेन प्रोडक्शन की मैकेनिज्म अलग है। सुपरफिशियल एरियाज में मसल्स में पेन प्रोडक्शन की मैकेनिज्म अलग है, आगे बात करेंगे उनके बारे में। देन स्पेशल रिसेप्टर्स एज यू नो आर द विजन, ऑल्फैक्शन, टेस्ट, हियरिंग एंड वेस्टिबुलर। ये दूसरा तरीका था रिसेप्टर्स को क्लासिफाई करने का। ये तीसरा तरीका रिसेप्टर्स को क्लासिफाई करने का। एक्सटीरोसेप्टर जो बाहर की तरफ है, उसमें 2 सब वैरायटीज हैं। टीली रिसेप्टर जिसमें दूर से ही पता लग जाता है, यहां अंदर आपको कुछ आता नहीं दिखेगा, बट द स्टिमुलस इज देयर एंड यू कैन फील इट। ऑल्फैक्शन है, विजन है, ऑडिशन है, ये आपके दूर से ही अफेक्ट कर सकते हैं। तो दे आर नोन एज टीली रिसेप्टर्स आर देयर। एंड देन वी हैव गॉट कुटेनियस रिसेप्टर्स, टच, पेन, टेम्परेचर, टिकल, इच एंड प्रेशर, ये सारे स्किन के रिसेप्टर्स हैं। देन इंटीरोसेप्टर, वो था एक्सटीरोसेप्टर्स, अब आगे इंटीरोसेप्टर्स अंदर जो मौजूद हैं। दे कैन बी बेरोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड पेन रिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स कहाँ हो सकते हैं? वेयर डू वी एक्सपेक्ट ऑस्मोरिसेप्टर्स? किडनी पढ़ा दी ने? किडनी पूरी पढ़ा दी? पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्मोरिसेप्टर्स कहाँ होंगे? नहीं, किडनी में रिसेप्टर नहीं होते, किडनी में मैकेनिज्म काम करती है। दैट इज द मैकेनिज्म टू क्रिएट एन हाइपर ऑस्मोलर एनवायरनमेंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम सो दैट द वाटर गेट एब्जॉर्ब, है ना, वो अलग मैकेनिज्म है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, तो ये कहाँ होंगे? हाइपोथैलेमस में होते हैं ये। ऑस्मोरिसेप्टर्स आर फाउंड इन द hypothalamus and an area which is outside the blood brain barrier, जिसका हम नाम पहले आ चुका है हमारे पास में, ऑर्गेनम वेस्कुलरिज्म ऑफ लेमिना टर्मिनालिस। ठीक है ना, जो भी वाइटल फंक्शन, वाइटल एरियाज है ब्रेन के अंदर, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, जिससे कि वो काम कर सके बिना किसी हिंड्रेंस के। देन वी हैव गॉट द प्रोप्रियोसेप्टर्स एज आई हैव सेड, मींस responsible for determining the position of the body in the environment and in relation to each other. So muscle spindles, Golgi tendon organs, vestibular and joint receptors are the proprioceptors in the body. So all these receptors are responding to different types of the stimulus energies, but there are certain properties which are common to all types of the receptors. So we call them as the general properties of the receptor. The general properties include, first, very important, is specificity. A particular type of the receptor requires a different stimulus energy to create a propagated electrical response. अगर रिसेप्टर को की इंफॉर्मेशन, जिसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो और आगे बढ़े, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टिमुलस एनर्जी चाहिए हमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल दें, हम आंखों की बात करें, वो मैं इसलिए दे रहा हूं कि एग्जाम में थोड़ा डिफरेंस आता है इसके अंदर। If you want to see something, electromagnetic radiation must enter into the eye. ठीक है, उसके अलावा आप जो कुछ कर रहे हैं उससे स्टिमुलस नहीं जाएगा, कुछ जाना चाहिए। मगर so what is specific for the retina? Wavelength of light has to be there. Light, electromagnetic radiations required, but those electromagnetic radiations falling on the surface of the skin
डज नॉट क्रिएट एनी सेंसेशन। उधर आंख में जाएगा तभी आपको दिखना शुरू होगा, मगर इसमें थोड़ा बट आ जाता है। बट यूं आता है, कोशिश करिए आंख को थोड़ा सा दबाएं हम और फिर छोड़ दें तो लाल पीले सितारे नजर आने लग जाते हैं, बट दैट इज एबनॉर्मल। स्टिमुलस तो हो रहा है, रेटिना इज गेटिंग स्टिमुलेटेड, you are seeing stars being created, but that is not normal sensation, that is not normal stimulus also for the retina. So a stimulus of appropriateness has to be there to excite a particular type of the receptor in the body. So specificity is to be there, पहली बात। Then adequate stimulus has to be there. Stimulus जो आपका appropriate है वो आपने दिया, उसकी adequate magnitude भी होना चाहिए। It has to have a certain energy level to create the electrical change which can be propagated down the nerve fiber. If that adequateness is not there, it will not create any stimulus, it will be ineffective. So adequate stimulus needs to be there. Then there is a phenomena of doctrine of specific nerve energies. ये बड़ी अच्छी बात है, इसको कहते हैं लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। इसका मतलब है, हालांकि ये इससे स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है, मगर जैसे हम एक यहाँ से नर्व जा रही है, यहाँ से पेन का सेंसेशन लेके एक नर्व जा रही है और वो कॉमन नर्व में जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड में गई, अंदर गई, ऊपर गई, ब्रेनस्टेम में गई और कॉर्टेक्स में गई। इस नर्व फाइबर को हम चाहे यहाँ स्टिमुलेट करें, चाहे यहाँ स्टिमुलेट करें, चाहे स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री हो रही है वहाँ स्टिमुलेट करें, या इसका पाथवे जो स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है वहाँ स्टिमुलेट करें, या जहाँ ये जाके एंड हो रहा है कॉर्टेक्स में वहाँ स्टिमुलेट करें। We stimulate at any point the nerve, the nerve will create same sensation in the body. यहाँ से जो पेन फाइबर जा रहा है उसको मैं इस पाथवे में ब्रेन तक कहीं भी स्टिमुलेट करूं इलेक्ट्रिकली, ये सेंसेशन पेन का ही क्रिएट करेगा और कोई सेंसेशन नहीं आएगा। दैट इज द फिनोमिना ऑफ लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। ये जो लाइन खिंची हुई है वो सिर्फ उसी सेंसेशन को कैरी करेगी, दूसरा सेंसेशन क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। देन देयर इज अ फिनोमिना ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल। सो व्हेनेवर एन एडुकेट स्पेसिफिक स्टिमुलस इज अप्लाइड टू अ रिसेप्टर, देन receptor membrane reacts to that, and because of that change there is a change in the permeability of the membrane to the sodium ions or to the potassium ion, depending upon the type of the receptor we are talking about. In most of the receptors, when an adequate stimulus is applied, an appropriate electrical change occurs. That electrical change is a local response always, okay, and this is normally a depolarizing response. So if a stimulus energy is applied to a receptor, it causes depolarization of the receptor membrane. The magnitude of depolarization depends upon the strength of stimulation. If the stimulus is more depolarization will be there, the magnitude will be greater, and there will be greater chances of action potential developing down the nerve fiber, okay. So, and that receptor potential most of the time, in most of the receptor, it is depolarizing response, okay. But in some receptors, the response can be hyperpolarizing also, and that is also excitatory. Is it so? In most of the receptors in the body, whenever we stimulate them, there is a local response generated which we call the receptor potential कहते हैं हम उसे, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है कितना स्टिमुलस आपने दिया है, and that is always a depolarizing response. It means if the resting membrane potential is minus 90 millivolts in the receptors, then it will get depolarized to minus 85 or minus 80 millivolts. It has depolarized, less negative हो गया ये, ठीक है, और उसकी वजह से आगे बदलाव आएंगे जो भी आने. But there are two receptors in the body which gets hyperpolarized and still the information is carrying on further. Rods and cones, initially they are hyperpolarized rather than depolarized, but this hyperpolarization response which is mostly negative, ये inhibitory response होता है ज्यादातर में, मगर आई में ऐसा नहीं होता है. ये response जो सेल सर्किटरी चलती है रेटिना के अंदर, उससे ये that converted into the propagated action potential in the optic nerve cell, optic nerve fibers. गैंग्लियन सेल पे जाते जाते वो जो हाइपरपोलराइजेशन रेस्पॉन्स था वो डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल आगे चला जाता है. So it does not remain inhibitory.
So receptor potential can be both a depolarizing response or a hyperpolarizing response. The magnitude will depend upon the magnitude of the stimulus energy provided. ठीक है? Then this receptor potential can be summated, as I said. It is a graded response. इसका मतलब जैसे मैंने एक स्टिमुलस लगाया, इसने -10 मिलीवोल्ट का या +10 मिलीवोल्ट का चेंज क्रिएट किया, ठीक है? अब मैं साथ के साथ ये दूसरा लगाता हूं तो वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर, दैट विल गेट एडेड अप. वो एक्शन पोटेंशियल में कभी नहीं होता. दिस इज रिसेप्टर पोटेंशियल इज अ लोकल रेस्पॉन्स, सो इट कैन बी समेटेड एंड समेशन कैन बी बोथ a spatial type of the summation or temporal type of the summation. उस पर हम आगे बात करेंगे क्या होता है. Then another property of the receptor found everywhere is the phenomena of adaptation. If a stimulus is applied for long duration, gradually the response of the receptor goes on decreasing and ultimately no response may be there. This is everyday finding with everyone. मैंने नहाने के बाद बनियान पहना, शुरू में लगा बनियान पहन लिया, उसके बाद मैं भूल गया, बनियान से कोई सेंसेशन ही क्रिएट नहीं हो रहा. द रिसेप्टर्स ऑफ द टच हैव अडैप्टेड कंप्लीटली, नो रेस्पॉन्स इज देयर. मगर मैं अगर इसको हिलाता रहूं तो बार बार रेस्पॉन्स आएगा, तो अडेप्टेशन नहीं हो पाएगा. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिसेप्टर इट टेंड टू गेट अडेप्टेड. बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स है जो बहुत फास्ट अडेप्ट करते हैं, कुछ दूसरे रिसेप्टर से जो बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं, और कुछ तीसरे रिसेप्टर जो बिल्कुल अडेप्ट नहीं करते. तो देयर कैन बी फास्ट अडेप्टिंग रिसेप्टर्स, उनकी अलग उपयोगिता है. स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स आर देयर, उनकी अलग उपयोगिता है. और नॉन अडेप्टिंग रिसेप्टर्स आर डिफरेंट. ओके, थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन ऑलरेडी हो गया. देन वी हैव गॉट द वेबर फ्रैक्शनल लॉ, इसकी हम आगे बाद में बात करेंगे.